A very good morning to everyone. Welcome in e-class of Social Science. Students, today we will continue chapter number 3 in geography, that is the changing phase. So at the very first we will know about the concept of plate tectonics. Students, the earth's crust consists on plates. Those plates are continuous moving. There are 6 major and 20 minor plates on which we are floating. Our earth, our crust is floating on that, and the rate of movement of this plate is very much slow, but the energy required to move this plate is produced by the internal heat of the earth. हमारे अर्थ के इंटरनली जो हीट होती है उसकी वजह से. बट आर अर्थ क्रस्ट इज़ वेरी मच थिक, दैट इज़ नियर अबाउट 35 किलोमीटर. तो इस थिकनेस की वजह से हमें ये चीज़ जो है वो पता नहीं चलती. Well, now we will continue with the topic what is Pangea. Students, it is given by, actually this theory is given by Alfred Lord Wegener in 1912. He was a German methodologist, made an attempt to explain the present day distribution of continents and ocean, and he proposed that millions of years ago all landmass were joined together into a supercontinent which is called Pangea. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द वेगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. सो स्टूडेंट्स, जस्ट नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी कि हमारे अर्थ से कौन सी एनर्जी निकलती है. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑन आवर अर्थ. दोज आर इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. इंडोजेनिक फोर्सेस वो होती हैं जो अर्थ के नीचे से फोर्स लगती हैं. ठीक है, द फोर्सेस विच ऑर्गेनेट फ्रॉम विद इन द अर्थ आर कॉल्ड इंडोजेनिक, एंड दोज फोर्सेस which originate on the surface of the earth, that is called exogenic. बेटा ये फोर्सेस की वजह से हमारे अर्थ पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, एज यू कैन सी दिस. तो इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से क्या क्या होता है? अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड्स, क्योंकि ये हमारे अर्थ के इंटरनल पार्ट में होता है. बट इफ़ वी टॉक अबाउट एक्सोजेनिक फोर्स, तो उसकी वजह से जो रिवर की वजह से वर्क होता है, विंड की वजह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, सी वेव्स की वजह से एंड ग्लेशियर्स की वजह से. तो वी विल कंटिन्यू विद दैट जस्ट नाउ. As you can see this image, this is the image of earthquake. Students, earthquake is the result of endogenic force. Endogenic force जो कि external force होता है. तो earthquake is resulted by the endogenic force. As you can see this image also. So students, earthquake के जो waves होते हैं they are of 3 types. As you can see this movement, this is the surface waves. सरफेस वेव्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं. ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों ही तरह से चलते हैं. दैट इज़ वाई इफ़ यू सी दिस मूवमेंट, तो दे आर द सेकेंडरी वेव्स. सेकेंडरी वेव्स उतने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते, बिकॉज if we talk about the waves, तो primary waves, surface wave, secondary waves and surface waves. तो there are 3 types of waves, but उसमें से जो सबसे ज़्यादा destructive होता है that is the surface wave. See the direction of primary wave. देखो हमारे अर्थ का जो इंटरनल पार्ट है उसमें अर्थक्वेक हमेशा आता रहता है, बट हमें वो फील नहीं होता. बट जब वो सरफेस वेव्स में कन्वर्ट होता है तभी वो हमें फील होता है. ठीक है, सेकेंड थिंग जो कि इंडोजेनिक फोर्स की वजह से होता है दैट इज़ द वॉल्केनिक इरप्शन. स्टूडेंट्स, वॉल्केनोज एक्चुअली इन द पास्ट वॉल्केनो वॉज नोन एज द माउंटेन ऑफ फायर. एक्चुअली इट इज़ नॉट अ माउंटेन, इट इज़ अ सर्कुलर ओपनिंग थ्रू विच हॉट मॉल्टेन मटेरियल इरप्ट. तो ये हॉट मॉल्टेन मटेरियल क्या होता है? दैट इज़ मैग्मा. आज यू कैन सी दिस इमेज ऑल्सो. सो स्टूडेंट्स, देर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्टिव वॉल्केनोज. Active volcanoes erupt frequently and throw out lava, gases, ashes and rocks. These volcanoes are also called living volcanoes. Next one is dormant volcanoes. Beta, dormant volcanoes are volcanoes that have been quiet after erupting, and these volcanoes do not show any indication of eruption in the near future. So these volcanoes are also called sleeping volcanoes. ठीक है. Next one and the last, that is the extinct volcanoes. Extinct volcanoes are also known as the name of dead volcanoes.
Actually, extinct volcanoes have not erupted from hundred of years. So there is no possibility of any eruption in future. So that is why these are the three types of volcanoes. Children, see this image. It is showing the Pacific Ring of Fire. This area is prone for volcano eruption as well as earthquake zone also. दोनों ही मामलों में ये एरिया जो है that is prone for that. अर्थक्विक जोन भी है और वॉल्केनिक इरप्शन भी यहाँ सबसे ज़्यादा होता है. एक्चुअली दिस इज़ नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बिकॉज ये एक सर्कुलर शेप का है. पैसिफिक ओशन कैसा है, ये सर्कुलर शेप का है और इसके चारों तरफ बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज है जिसकी वजह से, इनके इरप्शन की वजह से इस एरिया में बहुत ज़्यादा अर्थक्विक भी आते हैं. दैट इज़ वाई. Now students, just now we had talked about the endogenic forces, about the earthquake and volcanoes. Now we will talk about exogenic forces. Exogenic forces कौन से होते हैं, जो हमारे अर्थ के अपर पार्ट पे लगते हैं. तो अपर पार्ट पे किसकी वजह से लगते हैं, बिकॉज ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ विंड. तो जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर, दैट इज़ द फर्स्ट वर्क जो हम अभी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द वर्क ऑफ रिवर. तो रिवर के वर्क को हम डिस्कस करने से पहले जानेंगे कि वेदरिंग और इरोजन क्या होता है. बेटा, वेदरिंग एंड इरोजन दीज बोथ आर द प्रोसेस. ये दोनों ही प्रोसेस होते हैं जो कि एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से होते हैं. वेदरिंग इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक, सॉइल एंड मिनरल्स एज वेल एज वुड एंड आर्टिफिशियल मटेरियल थ्रू contact with Earth's atmosphere, water and biological organisms. And what is erosion? Erosion is the geographical process in which Earth's material are worn away and transported by natural force. जैसा कि आप नीचे सेकेंड इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ जो सॉइल है वो इरोड होकर एक जगह से दूसरी जगह पर इकट्ठी हो रही है. तो इरोजन का मतलब क्या होता है, एक्चुअली द वर्क ऑफ इरोजन. इरोजन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ को ट्रांसपोर्ट करके लेके जाना. दैट इज़ द इरोजन. बट दिस ट्रांसपोर्टेशन इज़ जस्ट due to natural things. तो those natural things are like we can talk about the river. तो river के बारे में बात करने से पहले we will know about the parts of river. तो एक river जो होती है वो जब शुरू होती है तो that starting and the beginning is called source. जब river नीचे की तरफ फैलती है तो that portion, a river mouth is the part of river where the river ट्रिब्यूटरीज से अपनी मिलती है और जाकर जब नीचे रिवर में फैलती है तो दैट इज़ नोन एज रिवर बेसिन. ठीक है, तो इस तरह से दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ रिवर एंड एट द वेरी लास्ट जहाँ पर ये ओशियन से मिलता है दैट इज़ नोन एज द रिवर माउथ. स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोसेस ऑफ अ रिवर, द रनिंग वाटर ऑफ रिवर कैरीज आउट इट्स वर्क इन थ्री वेज. किस तरह से, इरोड करके, ट्रांसपोर्ट करके और उस चीज़ को डिपॉजिट करके. तो इस तरह से बहुत सारे लैंड फॉर्मेशंस बनते हैं रिवर की वजह से. कैसे बनते हैं, लेट्स सी. एट द वेरी फर्स्ट यू विल नो अबाउट द साइकिल ऑफ इरोजन ऑफ अ रिवर. तो बेटा, जब रिवर कोई शुरू होती है, एट यू कैन सी द फर्स्ट पिक्चर, जब भी कोई रिवर अपने फर्स्ट स्टेज से चलती है तो वो वी शेप वैली को क्रिएट करते हुए चलती है. एक बहुत ही पतली सी वैली क्रिएट होती है. ठीक है, और जब वो रिवर नीचे बेसिन तक पहुंचती है तो ये बहुत सारे मियांडर्स को क्रिएट करते हुए ये एक रिवर बेसिन को क्रिएट करती है. एंड एट द वेरी लास्ट ये ऑक्सबो लेक को क्रिएट करती है. जैसा कि आप थर्ड इमेज में देख रहे हैं, ऑक्सबो लेक को क्रिएट करते हुए ये जाके फिर रिवर माउथ को क्रिएट करते हुए ओशियन में मिल जाती है. तो दैट इज़ द साइकिल ऑफ इरोजन ऑफ अ रिवर. सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर द मेन फॉर्मेशंस ऑफ अर्थ ड्यू टू रिवर. रिवर की वजह से क्या क्या चीज़ें बनती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शेप वैली. तो जब रिवर शुरू होती है तो वो सबसे पहले क्या क्रिएट करती है, वी शेप वैली. देन आफ्टर वाटरफॉल. वाटरफॉल क्यों क्रिएट होता है, वाटरफॉल भी रिवर के इरोजनल वर्क की वजह से क्रिएट होता है वाटरफॉल. ठीक है, एंड रैपिड. एज यू कैन सी द थर्ड इमेज, आपने देखा होगा कि जब वाटरफॉल ख़त्म होता है तो वहाँ से एक बहुत ही स्पीड में पानी निकलता है और पानी जाकर कहीं पर इकट्ठा होता है. तो दैट इज़ नोन एज रैपिड. तो दीज आर फ्यू इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशंस ऑफ रिवर. एज यू कैन सी ऑल्सो meanders, rivers following over generally sloping ground बीइंग द कर्व बैक. जो एक कर्व बनता है, जो एक मोड़ बनता है रिवर के फ्लो की वजह से, दैट इज़ नोन एज मियांडर. एज यू कैन सी द फर्स्ट इमेज. ऑक्सबो लेक
As you can see the second image, that is the Oxbow Lake. Oxbow Lake क्या होता है? Oxbow Lake is a U-shaped lake. एक यू शेप का लेक होता है. जब रिवर में फ्लड आता है तो यू शेप का लेक जो होता है ये एक्चुअली मेन रिवर से कट जाता है. ये मैंने आपको क्लास में भी समझाया है. तो मेन रिवर से कट जाने की वजह से एक छोटा सा लेक टाइप का क्रिएट होता है, दैट इज़ नोन एज ऑक्सबो लेक. एंड नेक्स्ट वन इज़ द फ्लड प्लेन. ये मेनली प्लेन एरियाज़ में ही बनता है, दैट इज़ द फ्लड प्लेन. एक्चुअली ड्यूरिंग फ्लड्स द रिवर जनरली ओवरफ्लो इट्स बैंक and fine alluvial soil brought by the river is deposited on the valley floor. So this fertile part is called flood plains. Students, next is natural levees. So in the flood plain the coarse material are deposited along the bank of the river. Thus long ridges of the low height are formed along the bank and these are called natural levees. What are the sandbars? As you can see the second image, जैसा कि आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे सैंड के पैचेस जो हैं वो रिवर के बीच में रह जाते हैं. तो when river reaches its mouth, it carries a large volume of water and alluvium and the excess load is deposited as sandbar. So next is distributaries. That distributaries, what are those? Actually in the wide river channel the dividation and the rivers are actually divided in channels, in several channels. तो those channels are known as distributaries. एक river जब बहुत सारे parts में divide हो जाती है ना तो that is called distributaries. And at the very last that is delta. In this stage delta कहाँ बनता है? delta सबसे last stage में बनता है. In this stage triangular shaped land is formed between the distributaries due to the deposition of sediments. तो ये delta जो है that is the work of river because of the deposition. ठीक है. Now the next work is the work of sea waves. स्टूडेंट्स सी की वजह से भी बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारे ऐसे लैंड फॉर्म्स होते हैं जो बनते हैं. तो वर्क ऑफ सी वेव इज़ ऑल्सो नोन एज द मैरिन इरोजन एंड मैरिन डिपोजिशन. मैं आप लोग को यहाँ पर बता रही हूँ द वर्क ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, जिसकी वजह से नए नए लैंड फॉर्मेट्स बनते हैं. तो इट इज़ कन्फाइंड टू अ नैरो बेल्ट अलॉन्ग द कोस्ट एंड द इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव. बेटा स्ट्रॉन्ग सी वेव्स डैश अगेंस्ट द कोस्ट. ये क्या करती हैं? कोस्ट यानी जो उसका किनारा होता है उसकी तरफ ये थ्रो करती हैं पानी को. एंड डिजॉल्व और ब्रेक डाउन द रॉक्स इनटू फ्रेगमेंट्स. Many large and small cracks develop on the rocky surface in due course of time. So these cracks become wide and form a large cavities. तो these cavities are called sea caves. जो sea caves होते हैं एक बहुत ही बड़ा cavity टाइप का बन जाता है. जैसे कि कोई किनारा है सी का, वहाँ पर लगातार जब पानी का ज़ोर पड़ता रहता है तो वह अपने आप में ही गहरा बिल्कुल केव की तरह बन जाता है. तो दोज आर नोन एज सी केव. यही सी केव वैन headland projected into the sea is attacked by sea waves from both sides. and ये क्या होता है कि ये दोनों ही तरफ से जब इस पे पानी का वी कैन से कि जो सी केव होता है जब इसमें पानी लगातार प्रेशर करता रहता है तो ये दोनों तरफ से खाली हो जाता है और आर पार दिखाई देने लगता है. तो दैट इज़ नोन एज सी आर्च. नाउ व्हाट आर स्टैक्स. जब ये सी आर्च जो होते हैं ये अपने साथ एक छत की तरह यानी एक वी कैन से कि रूफ़ की तरह क्रिएट कर लेते हैं. तो ये रूफ़ का जब ऊपरी सिरा गिर जाता है तो एक पिलर टाइप का सी में खड़ा हो जाता है. तो ये जो पिलर्स टाइप के दिखाई देते हैं दे आर नोन एज सी स्टैक्स. एंड एट द वेरी लास्ट विच यू आर सीइंग दैट इज सी क्लिफ्स, अ स्टेप वर्टिकल वॉल फेसिंग द सी. आपने कभी कभी देखा होगा किसी मूवी में या कहीं भी जहाँ पर सी का सीन दिखाया जाता है तो आपने देखा होगा सी के किनारे बहुत बड़ी वॉल खड़ी है. तो जब कोई वॉल टाइप की दिखाई दे सी के किनारे तो दैट इज़ नोन एज सी क्लिफ. Beaches. Students, the depositional work of the sea wave is a slowly process and beaches are formed by the deposition of sand. तो सैंड और पेबल्स के लगातार डिपोजिशन होने की वजह से बहुत हज़ारों सालों में ये बीचेस बनते हैं जो कि बहुत अच्छी जगह होती है घूमने की. नेक्स्ट वन इज़ द सैंड बार. व्हेन द ब्रोकन रॉक मटेरियल आर डिपोजिटेड ऑन द सी फ्लोर नियर द कोस्ट दैट इज़ कॉल्ड द सैंड बार. एंड you can see these image also that is formation due to the moving ice. So students जो ग्लेशियर्स होते हैं वहाँ पर भी
जो रिवर होती है, रिवर ऑफ स्नो एंड आइस, आइस और स्नो की रिवर होती है जो बहुत ही स्लोली मूव करती है, ठीक है। तो दीज ग्लेशियर्स, इन ग्लेशियर्स की वजह से भी बहुत सारे फॉर्मेशंस बनते हैं। तो एट द वेरी फर्स्ट दैट इज़ द यू शेप वैली। तो यू शेप वैली कब बनती है? जैसे कि हमने रिवर में पढ़ा था कि वी शेप वैली बनती है। तो वी शेप वैली क्यों बनती है? क्योंकि रिवर पानी बहुत ही थिन होता है और बहुत ही स्पीड से चलता है, तो वहाँ पर वी शेप वैली बनती है। इसी तरह से यू शेप वैली क्रिएट होती है, लेकिन क्योंकि जो ग्लेशियर में पानी होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है, वो जमा हुआ होता है और उसकी स्पीड बहुत हल्की होती है, दैट इज़ वाई ये यू शेप वैली को क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सारिक, दैट ग्लेशियर कर्व्स आउट डीप हॉलोज अलोंग द स्लोप ऑफ द माउंटेन एंड इट डेवलप्स एन आर्म चेयर टाइप लाइक डिपोजिशन कॉल्ड इज सेरिक, जो कि एक आर्म चेयर टाइप का, जैसा कि आप सेकेंड इमेज में देख रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड वर्क ऑफ विंड। स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर द एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो वर्क ऑफ विंड में सबसे पहले हम जानेंगे दैट इज द सैंड ड्यून्स, लैंडफॉर्म विच आर created by erosional and depositional activities of wind are called alluvial landform। तो इसको क्या बोलते हैं? alluvial landform। and depositional work of wind resulted in formation of we can say, इनकी वजह से क्या क्या चीज़ें बनती है? those are sand dunes, birches and loess। so these are the result of the work of wind, as you can see these images। so at the very first you will know about the mushroom rocks। students, mushroom rocks क्या होते हैं? near the ground, ये जो mushroom rocks होते हैं, जब rock पर जो एयर होता है, इसका जो कंटिन्यूस वर्क होता है, ये क्या करता है? विंड इरोड द मटेरियल, विंड इरोड द मटेरियल ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द रॉक एंड मोर देन द अपर पार्ट। जब कोई रॉक होता है उसका अपर पार्ट को ज़्यादा इरोड ना करके लोअर पार्ट को जब इरोड करती है विंड, तो वो रॉक जो होता है कई 100 सालों में धीरे धीरे करके एक मशरूम टाइप का शेप ले लेता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द मशरूम रॉक्स। Next one is loess। so the depositional work of wind starts when its speed declines or some obstructions like trees, bushes, forests, buildings etc. come in the way. Then the fine dust particle deposited extensively it is known as loess। and the next is about the sand dunes। students, the coarse particles are deposited in the form of hillock which is known as sand dunes। So students, till here you knew about the work of all these natural things, all the endogenic and exogenic forces। I hope this video will be useful for you. Thank you.